Hi everyone, welcome to IQRA IAS, and today we'll be covering current affairs from 21st of June till 27th of June. So as always, without wasting any time, let's just directly get into it. And the first topic we have this week is Global Trends Report. So we all know that there's a United Nations agencies which is mandated to aid and protect the refugees and the forcibly displaced communities and also the stateless people और उनके repatriation में भी help करती है, and that body is UNHCR, right? United Nations High Commissioner for Refugees. So UNHCR ने ही recently एक release करी है एक report which is Global Trends Report, राइट, ऑन फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट्स. जो भी फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट्स हुए हैं लोगों के, उसी के रिगार्डिंग UNHCR हैज़ रिलीज दिस रिपोर्ट रिसेंटली. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट एंड व्हाट आर द की takeaways or the key findings of this report. All right, so this is basically an annual report. The first question, so actually this will be the second question. The first question will be who releases the global trends report for a UPSC examination. So you need to remember that UNHCR is the body which releases global trends report. So it is a report which is released annually. Okay, again I've told you is published by UNHCR, and this report counts and track the number of refugees, internally displaced people, कि कितने ग्लोबली कितने लोग refugees रहे हैं या फिर internally अपने ही country में वो displace हुए हैं. It also track people who have returned to their countries and areas of origin. दे ऑल्सो सी कि जितने भी रेफ्यूजीज़ थे या जो भी हैं वो अपने कंट्री में वापस गए हैं, उनका क्या ओरिजिन रहा है, कितने असाइलम सीकर्स हैं, स्टेटलेस लोग कितने हैं, जैसे रोहिंग्याज का हम एग्जांपल ले लेते हैं, राइट. सो दिस इज़ ऑल व्हाट दे see or what they track. Now what are the key takeaways? First is around 82 million people were forcibly displaced by the end of 2020, और रीज़न उनका वो परसिक्यूशन, कन्फ्लिक्ट, उन्हीं के आसपास या उन्हीं के कंट्री में वायलेंस, ह्यूमन राइट वायलेशंस, राइट, इन सब की वजह से वो ज़बरदस्ती उनको डिस्प्लेस किया गया है. देयर इज 4% इंक्रीज इन फॉर्सिबली डिस्प्लेस पीपल अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो, और 2/3 से ज़्यादा पॉपुलेशन को अब्रॉड जाना पड़ा है, केम जो कि मोस्टली इन 5 कंट्रीज से जो कि अब्रॉड में वो गए हैं. फर्स्ट इज सीरिया, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, साउथ सुडान एंड म्यांमार. इनका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा हुआ है. टर्की इज होस्टिंग द लार्जेस्ट रेफ्यूजी पॉपुलेशन. सो दिस कुड ऑल्सो बी अ क्वेश्चन कि विच कंट्री इज होस्टिंग द लार्जेस्ट रेफ्यूजी पॉपुलेशन. टर्की इज द वन जिसके यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज आ रहे हैं. क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो ड्राइविंग डिस्प्लेसमेंट. क्लाइमेट चेंज भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है. दैट इज़ वाई people are ready to flee, people are ready to change their countries. Children are particularly affected during this displacement, especially if the displacement drags for many years, right? They account for 30% of the world's population, but estimated 42% of the all forcibly displaced people. ये children का जो है एक आपको account दिया हुआ है. COVID-19 की वजह से भी काफ़ी सारे displacements या forcible displacements या refugees आपके हुए हैं. So that was all about this topic. To summarize, we've read about Global Trends Report, which is released by UNHCR. We've also read about UNHCR, which is a United Nations agencies जो कि आपके refugees को या फिर जो forcibly displaced लोग हैं या stateless people हैं उनको प्रोटेक्ट करती है और उनका repatriation में भी उनकी हेल्प करती है. And we've also read about the key findings of this report. All right, up next we have World Investment Report. Again, first question first, it is released by UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, right? So this could be the first question, that which body releases World Investment Report. So UNCTAD or UNCTAD is the one. UNCTAD, we all know that it is a body which was established in 1964 and it was established as a permanent international body, और ये भी United Nations Secretariat का ही part है, which deals with the trade, investments and the development issues. What are the key findings of this report? अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें pertaining to India, so the first finding would be कि जो FDI रहा है 2020 में इंडिया के रिगार्डिंग was the first biggest recipient. हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है. आई मीन फिफ्थ बिगेस्ट FDI हमें मिला है. इंडियाज़ FDI रोज 27%. ठीक है, 27% हमने ग्रो किया है. When global investment flow shrank 35%, and this peculiar phenomena happened due to the following reason. ऐसा हुआ क्यों है कि globally चीज़ें shrank हो रही हैं पर हमारे यहाँ पर grow हुआ है? ऐसा भी इसलिए हुआ है because there were many mergers and acquisitions happen in our country, especially in the technology
space due to increased demand for digital products and services. India saw a huge investment and from overseas with major deals involving ICT. So basically जो टेक्नोलॉजी के पार्ट में काफ़ी सारे जो मर्जर्स और एक्विजिशंस हमने किए हैं, जिसकी वजह से डिमांड ICT की काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, राइट. कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की ज़्यादा बढ़ी है. Apart from this, India, China and Hong Kong were among the countries जिनका FDI में काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ है. India ranked 18 out of world's top 20 economies for FDI outflow, with $12 billion of outflows recorded from the countries in 2020 as compared to 13 billion जो 2019 में था. अगर हम एक ग्लोबल ट्रेंड की बात करें regarding FDI, so there's an overall slowdown which has been seen in the existing investment projects. तो लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से there's a slowdown which could be noticed. There's also a boost in demand of digital services along with this, क्योंकि of course सब लोग घर बैठे हुए थे तो digital services की demand भी बढ़ी है. The pandemic boosted the demand for digital infrastructure and this happened globally, not just in India. So ICT industry की demand काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है. FDI inflows in developing Asia grew 4% 2020 में, making it only region to record growth and increasing Asia's share of global inflows to 54%. चाइना का भी जो FDI का जो शेयर है वो भी इंक्रीज हुआ है. FDI इनफ्लोज इन एशिया इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज. 2021 में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एशिया को ओवरऑल भी बढ़ने वाला है. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट विच इज़ रिलीज बाय UNCTAD. और हम जो FDI का हमारे यहाँ पर इफ यू टॉक स्पेसिफिकली रिगार्डिंग इंडिया, so we hold 5th position. We are the 5th biggest recipient in terms of FDI, and we've also read about the global trends regarding this. Talking about, so up next we have theatre command. Again, a very important topic, could be asked in your mains examination. So we all know, अभी हमने recently कुछ साल पहले CDS की पोस्ट हमने डिज़ाइन की थी. CDS Chief of Defence Staff, who is recently General Bipin Rawat जो हैं वो हैं. So recently अभी क्या बात हो रही है, that we are going to create this integrated tri-services theatre command. So this you need to understand that what is this integrated term is all about and what is this integrated tri-services. Tri-services here we refer to as Army, Navy and Air Force, right? अभी तक क्या होता था कि उनके अलग अलग कमांड्स होते थे, अलग अलग सबके थिएटर कमांड्स हैं. थिएटर अलग अलग अपने जगह से सब अलग अलग अपने बेसिस से ऑपरेट करते थे. बट इन फ्यूचर और एक्चुअली देयर कुड बी एनी सिचुएशन, ऐसी कोई सिचुएशन या कोई भी प्रॉब्लम हमारी कंट्री पे आ सकती है where we need all the 3 services at one place, at one situation, at a single time, right? And that is why this idea came up, to integrate all the services. And this is what integrated tri-services theatre command is all about, कि तीनों services को integrate करना एक ही platform पे, right? So this theatre command is a military structure जहाँ पर all the assets of the Army, Air Force and Navy in a particular theatre of war are under operational control of 3-star general. एक 3-star general होंगे जो इन सबको कंट्रोल करेंगे. इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड में क्या होता है, यूनिफाइड कमांड हम क्रिएट करने वाले हैं इन तीनों सर्विसेज का, दैट इज आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवी को हम तीनों को एक जगह इंटीग्रेट करने वाले हैं एक सिंगल कमांडर के अंडर, राइट? और हम जोग्राफी वाइज इनको डिवाइड कर देंगे. लाइक फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट का एक थिएटर कमांड होगा, ईस्टर्न साइड का एक अलग से होगा, वेस्टर्न साइड का एक अलग से होगा, right? So this is how we are going to classify them. Alright, and this integrated theatre command will not be answerable to any 2 individual services. Integration of 3 forces will avoid duplication of resources. Of course, अगर आपके बीच में एक अच्छा communication रहेगा, एक integration रहेगा आप तीनों services के बीच में, कोई तो duplication of resources भी नहीं होगा. And who is related with this for this integration? So this is Shekatkar committee 2015 में जो आई थी, had recommended this creation of this integrated command, right? This integrated theatre command. Northern for China border, एक northern इन्होंने ही ये रेकमेंड किया था कि हमें एक नॉर्दर्न थिएटर कमांड बनानी चाहिए एक चाइना बॉर्डर के लिए, वेस्टर्न हमें बनानी चाहिए पाकिस्तान बॉर्डर के लिए, और सदर्न हमें बनानी चाहिए हमारे मैरीटाइम इश्यूज़ के लिए, राइट? सो इसीलिए वी हैव डिसाइडेड, वी हैव प्लान्ड, आवर गवर्नमेंट हैज़ प्लान्ड टू मेक दिस 4 integrated tri-services commands. First would be air defense theatre command. अपने मरीन जो भी इश्यूज़ हैं उन सबको देखने के लिए हमारे पास एक मैरीटाइम
थिएटर कमांड भी होगी, इंटीग्रेटेड ईस्टर्न थिएटर कमांड और एक वेस्टर्न थिएटर कमांड होगी, राइट। करंटली अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है हमारे कंट्रीज़ में। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास अभी कमांड्स नहीं है, अभी भी हैं, बट वही है कि हमारे पास वी नीड टू कम अप विद दिस इंटीग्रेटेड कमांड, राइट, जो कि हम वी आर प्लानिंग एंड वी विल डेफिनेटली कम अप विद दिस। बट इफ यू टॉक अबाउट द रीसेंट सिनारियो, सो वी हैव दीज कमांड्स, बट अभी क्या है कि आर्मी की अपनी अलग कमांड है, एयरफोर्स की अपनी अलग कमांड है, नेवी की अपनी अलग कमांड है, ऐसे ऐसे करके, राइट। बट नाउ वी विल बी हैविंग अ integrated command. So currently we have 17 commands. जो अभी recent scenario है, that is 17 है हमारे पास, साथ 7 each आर्मी और एयरफोर्स की है, that is 14, and then नेवी की 3 commands है, so 14 plus 3 becomes 17. So total we have 17 commands right now in our country. ठीक है। अंडमान एंड निकोबार की हमारी एक जॉइंट कमांड है, ये आपको पता ही होगा, इट इज़ द फर्स्ट, जो कि फर्स्ट ट्राई सर्विस कमांड भी है थिएटर अंडमान निकोबार वाला, राइट। अलॉन्ग विद दिस हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड भी है विच लुक्स आफ्टर द न्यूक्लियर, जो कंट्री के न्यूक्लियर एसेट्स है ना, उनको लुक आफ्टर करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थिएटर कमांड एंड दिस न्यू थिंग विच इज इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज कमांड। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अप नेक्स्ट वी हैव पिग्मी होग। So again 2-3 things regarding pygmy hawk you need to remember. ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है, आपको एक लोकेशन पता होनी चाहिए, इसके IUCN स्टेटसेस पता होने चाहिए, और अगर कुछ स्पेशल है इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के बारे में वो आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि एक तो ये इंडियन स्पीशीज़ भी है और काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है, तो दिस ऑटोमेटिकली बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। सबसे पहला, it belongs to which place? It belongs to असम, मानस नेशनल पार्क, जो कि असम में ही है। तो हमारे यहाँ से 2 फैक्ट्स तो क्लियर हो जाते हैं, दैट मानस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन असम एंड पिग्मी हॉग इज ऑल्सो फाउंड इन असम। सो इट इज़ वी ऑल नो कि ये पिग जो फैमिली है उसका स्मॉलेस्ट मेंबर है। इट इज़ नेटिव टू एल्यूवियल ग्रासलैंड्स इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, जो कि 300 मीटर के एलिवेशन तक मिल जाते हैं, जो कि असम में हमें ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। पिग्मी हॉग इज़ एन इंडिकेटर स्पीशीज़। इंडिकेटर स्पीशीज़ हमें सबको पता है, जैसे लाइकन भी एक इंडिकेटर स्पीशीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पोल्यूशन होता है कहीं पर, तो लाइकन इज़ द बेस्ट इंडिकेटर स्पीशीज़। लाइकन वहाँ पर ग्रो ही नहीं करते। अगर आपको कहीं लाइकन ग्रो हो रखे हैं कहीं, आपको इफ़ यू सी लाइकन ग्रोइंग समवेयर, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है। सो इंडिकेटर स्पीशीज़ मतलब जो इंडिकेट करते हैं कुछ, राइट। Its presence reflects the health of the primary habitat, the tall wet grasslands of the region, and that is why it is an indicator species. If we talk about the IUCN status of pygmy hog, it is endangered and which has been mentioned in Schedule 1 of Indian Wildlife Protection Act 1972. If we talk about a conservation program, pygmy hog का हमारी गवर्नमेंट ने एक conservation program भी चलाया हुआ है, which is called Pygmy Hawk Conservation Program, and it is this program is a collaboration between Dural Wildlife Conservation Trust, जो कि UK का है, और फॉरेस्ट, जो असम का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, राइट, along with Wild Pig Specialist Group of International Union for Conservation and Nature and Union Environment Ministry। इन सब के बीच में एक कोलैबोरेशन है जो कि ये प्रोग्राम चला रही है। अंडर दिस प्रोग्राम 6 पिग्मी हॉग्स, 2 मेल्स और 4 फीमेल्स, इनको हम कैप्चर करेंगे फ्रॉम बंसाबरी रेंज ऑफ मानस नेशनल पार्क, और हम इनका ब्रीडिंग प्रोग्राम हम शुरू करने वाले हैं। अलॉन्ग विद दिस हम एक री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम भी हमने बिगिन किया था। द री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम बिगेन इन 2008 विद द सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दिस ऑल्सो कम्स अंडर दिस कंजर्वेशन प्रोग्राम ओनली। एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम 142 पिग्मी हॉग्स को हम री इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वाइल्ड में। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंजर्व देम एंड ब्रीड देम एंड, और उनका पॉपुलेशन इंक्रीज करने का वी आर प्लानिंग। मानस नेशनल पार्क हमें पता है, दिस इज़ अ यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि असम में लोकेटेड है। प्रोजेक्ट टाइगर में भी ये आता है, एक टाइगर रिजर्व भी है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, राइट। और ये रॉयल मानस नेशनल पार्क ऑफ भूटान के साथ बाउंड्री शेयर भी करता है, और ये बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए बहुत फेमस है, लाइक फॉर एग्जांपल असम रूफ टर्टल, गोल्डन लंगूर। These all the species of pygmy hog, all the species are very important for examination. वो डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे कि where will you see this particular species, in which national park or at which location you can see these particular species. So you must know कि ये सब वहाँ पर मिलते हैं। वाइल्ड वाटर बफेलोज भी वहाँ पर मिलते हैं, राइट। So that was all about pygmy hog, Manas National Park, its IUCN status, or yeah. So that is all you need to remember about this, nothing more than that. Up next we have GM, rubber crop. Genetically modified crops is
अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर एग्जामिनेशन, चाहे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन हो या ब्रिंजल हो या फिर क्रॉप हो, सबका एक ही तरीका होता है बनाने का, जेनेटिकली मॉडिफाई करने का। और ये जो बायोटेक्नोलॉजी का, दिस बिलोंग्स टू बायोटेक्नोलॉजी एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम ऑल्सो। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है, जीएम कॉटन पे पूछ चुका है, तो रबर पे भी पूछ सकता है शायद। रबर बोर्ड हैज़ प्लांटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर, जो कि असम एट अपने एक फार्म में जो कि असम में है, उन्होंने वहाँ पर ये प्लांट किया है जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर फार्म। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती क्या है और हम उसको करते कैसे हैं, दिस इज द क्वेश्चन विच मस्ट बी कमिंग इन टू योर माइंड्स। सो आई विल टेल यू, जीएम रबर की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर कमिंग टू द जीएम रबर आई विल टेल यू एक जनरल चीज़ से अभी हम डील कर लेते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाई करना किसी भी चीज़ को, मतलब उसके किसी भी एक जीन को निकाल के एक दूसरा जीन उसमें इंसर्ट करना, विल बी इन सिंपलेस्ट टर्म इज जेनेटिकली उस चीज़ को मॉडिफाई करना, राइट। उसका एक जेनेटिकली मीन्स जीन, मॉडिफिकेशन मीन एनी काइंड ऑफ चेंजेस, राइट। सो इफ़ वी प्लक आउट एनी जीन किसी भी क्रॉप में से, क्योंकि हम यहाँ पर अभी क्रॉप की ही बात कर रहे हैं, तो क्रॉप में से अगर हम कोई भी एक जीन निकालते हैं और उसमें कोई फॉरेन जीन अगर हम इंसर्ट करते हैं, तो वो जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ है, वो पर्टिकुलर क्रॉप है, वो हो जाएगी जेनेटिकली मॉडिफाइड। ये है, दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस। नाउ जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर वॉज डेवलप बाय इंसर्टिंग MnSOD। वो डिपेंड करता है कि हम क्या प्लक आउट करते हैं, हम क्या एग्जैक्टली हम पर्टिकुलर किस चीज़ में क्या इंसर्ट करते हैं। तो रबर में जो हमने इंसर्ट किया है दैट इज MnSOD, दैट इज मैंगनीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, ये जीन को हमने इसमें डाला है। अब इसके ऑफकोर्स अगर हम ये सब कर रहे हैं तो ये हमें क्यों कर रहे हैं, इसके कोई फ़ायदे भी होंगे, कोई प्रॉफिट्स, कोई फ़ायदा होगा, दैट इज़ व्हाई वी आर डूइंग दिस। सो what is that benefit we are going to get out of this? We all know कि जो रबर है वो केरला में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, तो एक ही ना वार्म ह्यूमिड टेम्परेचर का क्रॉप है नेचुरल रबर जो हमें मिलता है, राइट। ये कोल्डर टेम्परेचर को ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाता है। सो बेसिकली टू ओवरकम द सीवियर कोल्ड कंडीशंस ओनली, विंटर के टाइम पे जो होती हैं, हमने इसमें ये मॉडिफिकेशंस किए हैं, राइट। द GM rubber plants are expected to overcome the severe cold conditions during winter, which is a major factor affecting the growth of the young rubber plants. Hence, this is the reason GM crop has been developed. इसीलिए हमने GM crop को develop किया है ताकि वो severe cold conditions को भी resist कर सके. Now, what are the significant? This is one of the significance. This is one of the importance and one of the reasons behind we are doing this. What are the other significance of GM rubber? सबसे पहले GM rubber is the first GM crop developed exclusively for Northeast. हम नॉर्थ ईस्ट के लिए सबसे पहला ही एक रबर है जो ये बनाने वाले हैं। सेकेंडली, GM रबर हैज़ एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द एडवर्स वेदर ऑफ सीवियर एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, जैसे कोल्ड, ड्रॉट और काफ़ी सारी चीज़ों से ये अपने आप को बचाने की क्षमता रखता है। इसीलिए ये सारे हमने इसमें मॉडिफिकेशंस की हैं ताकि वो रेजिस्ट कर सके इन सब चीज़ों को। थर्डली, देयर इज नो प्लांट स्पीशीज इन इंडिया दैट कैन ब्रीड विथ नेचुरल रबर, देयरफॉर देयर इज नो रिस्क ऑफ जीन फ्लोइंग फ्रॉम GM रबर इनटू एनी नेटिव स्पीशीज़। तो ऐसा नहीं है कि GM रबर अगर हम वहाँ उगा देंगे तो इसके जो जीन्स हैं वो किसी और वहाँ के ओरिजिनल प्लांट्स में शिफ्ट हो गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सो दिस इज़ कोई एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी इसके नहीं है, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट GM क्रॉप। टू समराइज दिस, वी हैव रेड अबाउट कि ये असम में ये फार्म प्लांट किया गया है। वी हैव रेड अबाउट जेनेटिकली मॉडिफिकेशन विच इज़ अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये होता कैसे है, और हमने जो रबर में जो स्पेसिफिकली मैंगनीज सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज को हमने इंसर्ट किया है, हमने उसके बारे में पढ़ा। एंड वी हैव आल्सो रेड अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ GM रबर। ऑलराइट, अप नेक्स्ट वी हैव एग्री स्टैक। So recently the agriculture ministry is working towards creating digital agri stack. एक डिजिटल एग्री स्टैक बनाने की हमारी जो मिनिस्ट्री है वो काम कर रही है फार्मर्स के लिए। ये बेसिकली एक डेटा कलेक्टर होगा जिसमें सारे डेटाज होंगे टू प्रोवाइड ग्रोवर्स विद अ रेंज ऑफ कस्टमाइज सर्विसेज लाइक इनपुट क्वांटिटी, आउटपुट चॉइस, पोटेंशियल मार्केट। आई एम श्योर ये आपको समझ नहीं आया होगा। इन सिंपलेस्ट टर्म आई एम टेलिंग यू, ये फार्मर्स को ये बताएगा कि कौन सी क्रॉप आपको कहाँ कब ग्रो करनी है, कौन सा आपको प्लांट ग्रो करना है, कहाँ आपको बेचना है, कौन से मार्केट में आपको अगर आप बेचेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये प्रोवाइड करने वाला है दिस एग्री स्टैक, एंड दिस विल बी डिजिटली
available to you all, to all the farmers out there. The project will collect granular data to provide growers with a range of customized services like what to plant, where to sell, market information, ये सारी आपको पता चलेंगी. एंड आपको एक फार्मर्स को एक यूनिक फार्मर आईडी दिया जाएगा जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक्ड होगा, राइट. और उसमें आपकी ऑनरशिप डिटेल्स, क्योंकि वो आधार कार्ड से लिंक्ड होगा तो आपकी ऑनरशिप डिटेल्स, आप और भी बहुत सारी डिटेल्स आपकी गवर्नमेंट के पास होंगी. और गवर्नमेंट इसी वजह से आपको जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी आपको बेनिफिट्स है, जैसे अगर आप किसी स्कीम के अंडर फॉल करते हो, अगर आप किसी कैश ट्रांसफ़र के अंडर आप एलिजिबल हो, तो वो सब, और जो भी इंश्योरेंसेज हैं या सब्सिडीज़ हैं वो आपको प्रोवाइड कर पाएगा, क्योंकि आप वो आधार कार्ड से लिंक होएगा. सिग्निफिकेंस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, हम दोनों ही पढ़ने वाले हैं. सिग्निफिकेंस यही है कि एक ये दिस स्टैक विल फ्यूल इनोवेशन, सपोर्ट सेवरल वैल्यू एडेड सर्विसेज एट डिड्यूस्ड by a consultation paper titled India Digital Ecosystem of Agriculture, that is IDEA. इसमें बेसिकली आपको सारी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी, राइट. ये जो स्टार्टअप है दिस रिसीव्ड ओवर $1.5 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट. 5-7 साल में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी मिला है. हम इसमें AI और मशीन लर्निंग भी यूज़ करने वाले हैं, और ये it would be used to by insurance firms to do effective crop loss assessment, कि जो भी आपका crop losses होते हैं फार्मर्स के, और जो इंश्योरेंस उनको चाहिए होता है वो भी हम अच्छे से असेस करके फार्मर्स को प्रोवाइड कर पाएंगे. ये तो हुए इनके सिग्निफिकेंस. ना व्हाट आर द कंसर्न्स और व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एग्री स्टैक. सबसे पहला है कि क्योंकि आधार कार्ड से लिंक्ड होगा तो हो सकता है कि वहाँ पर इसको लेके कुछ इश्यूज आ जाएं, बिकॉज लिंकिंग land ownership data with Aadhaar may hit a roadblock because the process of digitizing land record, it's still under process in India. ठीक है, हमने अभी लैंड रिकॉर्ड सारे डिजिटाइज किए नहीं है, ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि आपके आधार कार्ड से सारी आपकी लैंड की इन्फॉर्मेशन पता कर सके, क्योंकि अभी वो भी अपने आप में एक प्रोसेस है जो कि विच इज़ स्टिल गोइंग ऑन. आपका डिजिटाइजेशन इन टर्म्स ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग वो अभी चल ही रहा है. सब कुछ अभी रजिस्टर्ड नहीं है, राइट. बहुत सारे स्पेशली जो स्मॉल फार्मर्स हैं दे आर स्टिल आउट ऑफ इट. तो कैसे, अगर वो अभी आपके पास उन छोटे फार्मर्स का रिकॉर्ड ही नहीं है, तो कैसे आप सारे जो सब्सिडीज़, इंश्योरेंस स्कीम्स हुए या फिर जो भी बेनिफिट्स हैं वो कैसे आप पहुंचा पाओगे. आप बिग फार्मर्स तक पहुंचा सकते हो बट आप स्मॉल फार्मर्स तक नहीं रीच कर पाओगे बिकॉज यू डोंट हैव द डेटा येट. सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ कंसर्न. ओके, ये मैंने अभी बताया कि स्मॉल फार्मर्स उससे बाहर रहेंगे, एक्सक्लूडेड रहेंगे, क्योंकि और ये डिजिटल डिवाइड है, हमें पता है, स्मॉलर और बिगर फार्मर्स के बीच में, राइट. सो या दिस वाज ऑल अबाउट एग्री स्टैक. आई हैव टोल्ड यू व्हाट एग्री स्टैक इज, इसके क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है. अप नेक्स्ट वी हैव रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्यों है न्यूज़ में और ये कहाँ लोकेटेड है, और इसके बारे में जो भी अगर हमें इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे. सो अभी रिसेंटली इसको NTCA से, दैट इज़ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से, एक मंजूरी मिल गई है कि टू बिकम अ टाइगर रिजर्व. ये है कहाँ पर, दिस इज सिचुएटेड इन राजस्थान एंड दिस विल बी द 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया. अभी हमारे पास 51 थे. रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बूंदी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है, जो थोड़ा सदर्न राजस्थान में आपका पड़ता है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो ये पहले से ही था, 1982 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया था, पर नाउ इसको NTCA से परमिशन मिल गई है टाइगर रिजर्व के लिए भी, राइट. दिस फॉल्स अंडर द बफर जोन ऑफ रणथंबोर टाइगर रिजर्व. रणथंबोर टाइगर रिजर्व के बफर जोन में ही ये फॉल करता है, राइट. इसके फ्लोरा फौना की बात करें, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम. फ्लोरा की अगर बात करें, फ्लोरा मीन्स रिलेटेड टू flowers, fauna is related to the animals and birds. Flora is dog, kher, सलार, खीरनी ट्रीज, ये सब, मैंगो बेर, ये सब आपको यहाँ पर मिलेंगे. अगर हम फौना की बात करें, लेपर्ड, सांबर, वाइल्ड बोर, चिंकारा और हाइना, वॉल्फ, जैकल, जो भी आपको एरिड रीजन पर मिलते हैं. क्रोकोडाइल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइगर रिजर्व्स इन राजस्थान, तो करंटली 3 टाइगर रिजर्व्स है, रणथंबोर, सरिस्का एंड मुकंदरा हिल्स, जो कि कोटा में है. सरिस्का हमें पता है अलवर में, और रणथंबोर तो हमें पता ही है सवाई माधोपुर में. प्रोजेक्ट टाइगर विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ आवर कंट्री, 1973 में शुरू हुआ था. टू कंजर्व व्हाट, टू कंजर्व द नेशनल एनिमल, जो कि है टाइगर.
ये मैप दिया हुआ है, एज आई टोल्ड यू बूंदी यहाँ पर सिचुएटेड है, तो हम ये अभी इस रीजन की बात कर रहे हैं. इट इज़ एन ऑन गोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, दिस प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है. करंटली प्रोजेक्ट टाइगर कवर्स हैज़, इसका कवरेज काफ़ी ज़्यादा अभी बढ़ गया है. 51 टाइगर रिजर्व इसके अंडर आते हैं, which spreads out in 18 टाइगर रेंज स्टेट्स, जो कि 2% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया कवर करता है हमारे देश का. एम स्ट्राइप्स हमें पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ भी चुका है. विच मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, जो कि मॉनिटर करने के लिए, उनको काउंटिंग करने के लिए, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए टाइगर्स की काम आता है, विच वॉज लॉन्च इन 2010 बाय NTCA. So that was all about this new tiger reserve which is situated in Bundi district of Rajasthan. Up next we have financial action task force, again a very important organization, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, आपको काफ़ी, आप हर शायद दूसरे तीसरे दिन या फिर हर हफ्ते इसको न्यूज़ में पढ़ लेते होंगे. सो इन्होंने अभी ये डिसाइड किया है, हम ये भी पढ़ेंगे ये एग्जैक्टली ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, बट अभी रिसेंट इसका जो करंट अपडेट है वो ये है, इन्होंने फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखने का डिसाइड किया है. हमें पता है ग्रे लिस्ट होता है, ब्लैक लिस्ट होता है. ब्लैक लिस्ट में हमारे पास ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, ये सब है. अभी FATF क्या होती है और ये ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट क्या है. तो FATF एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि 1989 में इस्टेब्लिश हुई थी. G7 समिट हुआ था पेरिस में, उसके टाइम पर FATF को बनाया गया था. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड हियर. FATF का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमें एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना है, कुछ जो भी हम पॉलिसीज बनाएंगे उन सब का, रिगार्डिंग द थिंग्स, रिगार्डिंग द मेजर्स, सो दैट वी कैन कम्बाट what all the things, this is important, मनी लॉन्ड्रिंग को हम कम्बाट कर सकें, मनी लॉन्ड्रिंग को हम कंटेन कर सकें, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को हम रोक सकें, और जो भी एक देश की इंटीग्रिटी को थ्रेट करता है या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को थ्रेट करता है, वो उसको हम कंटेन कर सकें. इसका सेक्रेटेरिएट हमें पता है पेरिस में सिचुएटेड है. इसके अंदर 39 मेंबर्स हैं, जिसमें रीजनल यूरोपियन यूनियन और आपका गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी आ जाता है. इंडिया भी इसका मेंबर है. इसके 2 लिस्ट होते हैं, मैंने अभी बताया, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट. ब्लैक लिस्ट में मैंने ये भी बता दिया कि ईरान और ये आपका नॉर्थ कोरिया है. अभी ग्रे लिस्ट में दीज आर द कंट्रीज कंसिडर्ड सेफ हैवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग. जो कंट्रीज टेरर फंडिंग को सपोर्ट करती हैं उनको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है. मनी लॉन्ड्रिंग को जो सपोर्ट करती हैं उनको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, राइट. ब्लैक लिस्ट में कंट्रीज known as non-cooperative countries or territories are put into blacklist, जो कि non-cooperative हैं regarding all these things, और इनमें भी ये जो टेरर फंडिंग को वो करते हैं, इंडोर्स करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को इंडोर्स करते हैं, उन सबको भी हम ब्लैक लिस्ट में डालते हैं. पर ये ज़्यादा एग्रेसिव वो हो जाता है, लिस्ट हो जाता है. सो और ये आई गेस 3 बार, इट मीन्स 3 times per year, या 3 बार मिलते हैं एक साल में, ठीक है. ये पॉइंट भी आप याद रखें फॉर योर एग्जामिनेशन. सो FATF के बारे में हमने पढ़ा, और ये जो इसकी करंट अपडेट था कि पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में ही है, ये भी, और हमने ब्लैक लिस्ट में के बारे में भी पढ़ा, और उसके जो भी मेंबर्स हैं उसके बारे में भी पढ़ा जो उसमें फॉलो करते हैं. अप नेक्स्ट वी हैव डीलिमिटेशन एक्सरसाइज इन जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर अभी आपने थोड़े दिन पहले न्यूज़ में देखा होगा कि सारे जम्मू एंड कश्मीर के जो भी लीडर्स हैं वो मोदी जी ने उनको बुलाया था एंड दे हैव कम अप. सो ये डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होनी है जम्मू कश्मीर में. वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, और ये डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होनी है क्योंकि प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वहाँ पर इलेक्शन होने हैं और ये सब. बट उससे पहले डीलिमिटेशन एक्सरसाइज ज़रूरी थी, क्योंकि जब तक हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को सेटअप नहीं करेंगे या कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को डीमार्केट नहीं करेंगे प्रॉपरली, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को डीमार्केट करेंगे प्रॉपरली, तभी हम इलेक्शन भी कंडक्ट कर पाएंगे, राइट. सो विल अंडरस्टैंड व्हाट डीलिमिटेशन इज और क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग. ओके, सो डीलिमिटेशन बेसिकली होता है कि रीड्रॉ करना बाउंड्रीज़ को, कि जो भी पूरा स्टेट है उसमें डिस्ट्रिक्ट्स को इस तरीके से बांटना, या फिर नॉट एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट्स, हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलेंगे, नॉट डिस्ट्रिक्ट्स, वी विल कॉल देम कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को रीड्रॉ करना, ताकि एक MP के अंडर इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन फॉल हो, ताकि ऐसा नहीं हो कि एक MP के अंदर आप 10 लाख लोग वो हैंडल कर रहे हैं और दूसरा MP 50,000 लोग हैंडल कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. एक
इक्विटी होनी चाहिए. So delimitation is that only. Delimitation एक एक्सरसाइज होती है ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ असेंबली और द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी. लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो भी बाउंड्रीज है उसको रीड्रॉ करना टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन पॉपुलेशन ऑफ द रीजन. ऑफ कोर्स अगर 20 साल में या फिर 10-20 साल में पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है या फिर डिस्प्लेस होती है, जो भी होते हैं, तो हमें लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीड्रॉ करना होता है. दिस इज व्हाट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट. और इसी के लिए डीलिमिटेशन कमीशन को इनैक्ट किया गया था या फिर उनको बुलाया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था डीलिमिटेशन कमीशन को, राइट. सो द पार्लियामेंट इनैक्टेड दिस डीलिमिटेशन एक्ट अंडर आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी के तहत डीलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ये एक्सरसाइज कैरी आउट करने के लिए, बाउंड्रीज रीड्रॉ करने के लिए, जिसके डीलिमिटेशन के जो डीलिमिटेशन कमीशन के कॉम्पोजिशन, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट. इट कंसिस्ट ऑफ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, CEC, दैट इज चीफ इलेक्शन कमीशन, देन रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जो भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो. इसके एसोसिएट मेंबर्स, सबसे पहला तो हमारे एग्जाम के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, but we can still read the associate members. The members of the Parliament and Legislative Assembly of the state for which Delimitation Commission is set up are nominated as associate members, ताकि वो कमीशन की हेल्प कर सके पूरा टास्क अचीव करने में. Delimitation Commission is a high power body whose orders have the force of law and cannot be called in before any कोर्ट. I'll tell you, अगर डीलिमिटेशन ने ये डिसाइड कर लिया कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने सीट्स होंगे या फिर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये बाउंड्री होगा, तो नोबडी, नॉट इवन द कोर्ट, कैन काउंटर क्वेश्चन देम. कोई भी किसी में भी अभी ये लॉ ये कहता है कि किसी के पास भी पावर नहीं है कि डीलिमिटेशन कमीशन को क्वेश्चन कर सके, राइट. डीलिमिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर. सो वी ऑल नो कि delimitation of the Lok Sabha seat in Jammu and Kashmir was governed by the Constitution of India. So जब लोकसभा सीट्स को की डिलिमिटेशन की बारी आती है तो वो हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से करते हैं, ठीक है. ये वाली डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जब लोकसभा जम्मू कश्मीर की लोकसभा का डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट करना होता है, दैट वी डू अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बट अगर असेंबली सीट्स को डिलिमिटेशन करना होता है, असेंबली सीट्स का एलोकेशन होता है, तो दैट इज डन अंडर, not under the Constitution of India but under the Jammu and Kashmir Representation of People Act 1957. This is the difference and a very important point you need to remember कि अगर लोकसभा, वहाँ की लोकसभा का डिलिमिटेशन कंडक्ट करना होता है तो वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है, बल्कि एंड जो वहाँ के असेंबली सीट्स का जो एलोकेशन होता है वो जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के हिसाब से होता है. 1957 में जो ये एक्ट आया था उसके हिसाब से होता है. लास्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज आप पूछेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में 1955 में हुई थी, राइट. देयर वाज नो सेंसस इन द स्टेट इन 1991 एंड आफ्टर 2001 सेंसस जम्मू एंड कश्मीर असेंबली हैड पास्ड अ लॉ पुटिंग ऑन होल्ड कि हम अब 2026 में ही डिलिमिटेशन कराएंगे, बट अभी ज़रूरत है तो वी आर डूइंग दिस. हाउएवर 370 हमें पता है ये क्योंकि ये 2026 बोला गया था क्योंकि हमें पता नहीं था ये स्पेशल स्टेटस हट जाएगा और ये सब हो जाएगा, तो बट अभी 370 हट गया है तो स्पेशल स्टेटस नहीं है. हेंस डिलिमिटेशन कमीशन हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू डू ऑल ऑफ दिस एंड टू रीड्रॉ द बाउंड्री. सो दैट वाज ऑल अबाउट इट. आई होप आपको समझ आया होगा डिलिमिटेशन क्या है और जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन पर्टिकुलरली कैसे होता है. अब नेक्स्ट वी हैव SCO मीटिंग. सो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अभी एक मीटिंग हुई है जिसको हमारे NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने अटेंड किया था, राइट. सो NSA हैज़ अटेंडेड अ मीटिंग फ्रॉम India's NSA has attended a meeting of NSAs from Shanghai Cooperation members country Dushanbe, capital of Tajikistan. तो काफ़ी जो भी NSA जितने भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं सबकी जो मीटिंग हुई है, SCO जो ग्रुप है उन सब के NSAs की मीटिंग हुई थी तजाकिस्तान में, which is in Dushanbe. I mean Dushanbe is in Tajikistan. What are the important bodies mentioned in the meeting? किस
बॉडीज़ के बारे में हमने बात करी है या जो भी डिस्कशंस हुए हैं इस मीटिंग के दौरान। सबसे पहला है FATF, जो हमने अभी पढ़ा है, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, G7 समिट में हुई थी और पेरिस G7 समिट के दौरान इसको इस्टेब्लिश किया गया था। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है और हमने ये भी पढ़ा कि मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट, टेरर फंडिंग के अगेंस्ट ये काम करती है, राइट, उनको कंटेन करने के लिए। वी रेड अबाउट दिस FATF just a while back. Then they've also talked about this INSTS, that is International North South Transport Corridor, जो कि 2000 में 2000 जो ईयर था उसमें प्रपोज किया गया था। और ये इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था ये वही था कि रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को, सेंट्रल एशियन स्टेट्स और इंडिया की कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। दिस इज़ व्हाट INSTC वाज ऑल अबाउट। तो उसके लिए हमें पता था एक 7000 किलोमीटर का एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी हमने इस्टेब्लिश करने के बारे में सोचा था, राइट, जो कि सारे जिस पे सारे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स अवेलेबल होते हैं, शिप, रेल, रोड, ये सब अवेलेबल हैं। इट इंक्लूड्स 13 कंट्रीज़, ठीक है, इंडिया, ईरान, रशिया, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, तजाकिस्तान, ओमान, सीरिया एंड यूक्रेन। This was International North-South Transport Corridor. Apart from that, इस मीटिंग में अशगाबाद अग्रीमेंट के बारे में भी बातें हुई, जो कि एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट अग्रीमेंट ही है। ये भी एक ट्रांसपोर्ट अग्रीमेंट ही है बिटवीन कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान एंड ओमान की गवर्नमेंट्स के बीच में। तो रिमेंबर, इसमें भी इंडिया पार्ट है, INSTC में भी इंडिया पार्ट था, राइट। सो बेसिकली ये एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट को और एक ट्रांजिट कॉरिडोर फैसिलिटी ट्रांसपोर्टेशन को सेंट्रल एशिया, पर्शियन गल्फ के बीच में क्रिएट करने की कोशिश करता है दिस अशगाबाद अग्रीमेंट। नाउ SCO डेफिनेटली ये तो पूरा हेड था ही। तो ये तो एक इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 2001 में फॉर्म हुई थी। शंघाई में इसका शंघाई में ये फॉर्म हुई थी और जो उसके फाउंडिंग मेंबर्स थे वो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान थे, राइट। द मेंबर्स ऑफ SCO जो अभी हैं वो चाइना है, इंडिया है, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, इसमें तीनों ही हैं। देखो ये थोड़ी अलग बात है, आपको ये तीनों रेयरली कहीं मिलेंगे। चाइना भी है, इंडिया भी और पाकिस्तान भी है यहाँ पर। रशिया, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान को 2017 में ही लाया गया है। परमानेंट मेंबर्स ही 2017 में ही बने हैं, उससे पहले नहीं थे। फाउंडिंग मेंबर्स तो बिल्कुल भी नहीं थे SCO के, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया नहीं था, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। अप नेक्स्ट वी हैव डेल्टा प्लस वेरिएंट। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है तो इसलिए वी आर कवरिंग दिस। डेल्टा प्लस वेरिएंट, सबसे पहला शायद आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता होगा कि ये कितना सीवियर है या नहीं। एक्चुअली देयर इज़ नो सर्टेन आंसर टू दिस क्वेश्चन, नॉट राइट नाउ स्पेशली। अभी इसका कोई एग्जैक्टली आंसर नहीं दे सकता है। देयर आर रिसर्चेज व्हिच आर गोइंग ऑन और अभी रिसर्चेज होंगी और जितना हम प्रिकॉशंस रहेंगे उतना ही शायद हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट इज़ गोइंग टू बी, बट अभी तक रिसर्चेज आर गोइंग ऑन। अभी तक जितने भी रिसर्च हुए हैं दे ऑल आर सेइंग कि ये जो सेकेंड वेव था उससे ज़्यादा डेंजरस नहीं होने वाला है थर्ड वेव, बट लेट्स सी, इट ऑल डिपेंड अ लॉट ऑफ, नॉट ऑल बट अ लॉट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन अस, हम कितने प्रिकॉशंस रहते हैं, हम कितना मास्क रहते हैं। तो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टे मास्क, फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग, और शायद यही तरीके हैं जिससे गो गेट वैक्सीनेशन, शायद यही तरीके हैं जिससे हम ये सब चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हैं। एनीवेज, अ न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस हैज़ बीन डिटेक्टेड इन सम स्टेट्स, राइट। और क्या ये थर्ड वेव इसी की वजह से आ सकती है? दिस इज द क्वेश्चन। सो डेल्टा वेरिएंट जिसकी वजह से सेकेंड वेव आई थी, हमें पता है इसमें भी काफ़ी सारे म्यूटेशन हो गए हैं, इसलिए हमने इसको डेल्टा प्लस बोला है। WHO ने, हमें पता है, नॉर्मल क्लेशर किया है अलग अलग उसका। एक्चुअली जो UK में मिला था हम उसको बोलते हैं अल्फा वेरिएंट, ठीक है, अल्फा वेरिएंट। जो फिर साउथ अफ्रीका में मिला है हम उसको बीटा वेरिएंट बोल रहे हैं। देन ब्राज़ील में मिला है गामा वेरिएंट और जो इंडिया में मिला है उसको डेल्टा वेरिएंट, हमें पता है, जिसकी वजह से सेकेंड वेव आई थी। नाउ इज दिस अ कॉज ऑफ कंसर्न एंड व्हाई दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न? आई विल टेल यू। सबसे पहले मेरे को यहाँ पर दो चीज़ें बतानी है। वन इज the strain of concern and another is the strain of interest, right? तो कंसर्न वाले में क्या है और इंटरेस्ट वाले में क्या है? इंटरेस्ट वाले में एक्चुअली वो वायरसेस या वो म्यूटेशंस फॉलो करते हैं जिनकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा होती है, बट
कंसर्न वाले में वो फॉल करते हैं जिनकी ट्रांसमिसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है और उनकी सीवियरिटी भी ज़्यादा होती है, कि अगर आपको वो उनसे बीमारी हो गई है तो वो ज़्यादा चांसेस है कि वो ज़्यादा सीवियर आपको बीमारी होगी. नाउ व्हाई दिस इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न, दिस पर्टिकुलर प्लस, डेल्टा प्लस, क्योंकि ये हमें पता है प्रेडिसेसर है डेल्टा वेरिएंट का, जिसकी वजह से सेकेंड इतनी डेंजरस जो वेव आई है हमारे मई मंथ में. फर्दर डेल्टा प्लस ऑल्सो हैज़ द सेम म्यूटेशन जो कि हमने बीटा वेरिएंट में देखा था साउथ अफ्रीका में, राइट, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, और वैक्सीनेशन कितना काम करेगा कितना नहीं, और ये सब चीज़ें भी हमें नहीं पता है. सो आई एम अगेन टेलिंग यू कि ये अभी रिसर्चेस हो रही हैं, बट ऑल वी नीड टू डू राइट नाउ इज स्टे मास्क्ड, गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड एंड follow social distancing. That's all what we can do right now. Up next we have mega investment textile park, that is मित्रा स्कीम. मित्रा स्कीम, द फर्स्ट क्वेश्चन कि कौन से मिनिस्ट्री से ये एसोसिएटेड है. तो यहाँ पर थोड़ा सा कैच है, क्योंकि शायद आप मिनिस्ट्री ऑफ वो टेक्सटाइल आप मार्क करेंगे, बट यहाँ पर दिस इज रिलेटेड विद फिनेंस मिनिस्ट्री. सो रिसेंटली फिनेंस मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड दिस स्कीम, नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और समथिंग. ये है क्या? इट एम्स, ये बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के जो भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं उनको उनका एक्सपोर्ट जो है इंक्रीज करने की बात करता है. दिस एनेबल द टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू बिकम ग्लोबली competitive and boost the export. The scheme also aims to boost the employment generation within textile sector and also to attract the large investment. So basically export बढ़े, employment बढ़े इस सेक्टर में, ठीक है, और हम ग्लोबली competitive हों. ये तीन चीज़ें मित्रा स्कीम के अंदर हैं. What are the main features under this scheme, which was launched in addition to PLI, that is production linked incentive. PLIs होते हैं कि ये कंपनीज को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि जितना आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे गवर्नमेंट उसी हिसाब से उतना ही आपको इंसेंटिव देगी. दिस इज व्हाट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. इस स्कीम के अंदर देयर इज अ प्लान टू एस्टैब्लिश 7 टेक्सटाइल पार्क्स 3 सालों में हम बनाने का ये सोच रहे हैं, जो कि जिसमें हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाले हैं, राइट, और सो दैट बेसिकली globally competitive हो हमारी textile industries, right? Talking about the textile static part, so this is the 6th largest exporter of textile and apparel in the world. हमारी जो textile sector है, India's textile sector. The industry is also among the top employers in the country, providing direct employment to 45 million people and 60 million people इन एलाइड इंडस्ट्रीज. तो ये बहुत काफ़ी बड़ा पॉपुलेशन है. टेक्सटाइल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है. तो दैट वाज ऑल अबाउट मित्रा स्कीम. अप नेक्स्ट वी हैव बुलेट ट्रेन इन तिब्बत. तो चाइना ने अभी ये एक ट्रेन शुरू करी है, इसलिए न्यूज़ में था, और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे स्ट्रेटेजिक उसके लिए, बॉर्डर्स के लिए. सो दे हैव स्टार्टेड दिस ट्रेन, बुलेट ट्रेन तिब्बत में इन्होंने स्टार्ट करी है, ठीक है, लासा से निंगचिंग तक, जो कि एक तिब्बत बॉर्डर के पास ये टाउन सिचुएटेड है, विच इज़ क्लोज टू आवर कंट्री, विच इज़ क्लोज टू अरुणाचल प्रदेश एज वेल, एंड इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं ऑफ कोर्स. सो वी वॉन्ट बी रियली गोइंग इनटू द डिटेल्स कि कितने किलोमीटर्स वो करता है और वो सब. वी विल सी कि इंडिया का क्या वो है. इंडिया इज़ फॉलोइंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू रेलवे क्लोजली. हम काफ़ी ध्यान से इसको देख रहे हैं कि व्हाट चाइनीज आर डूइंग, बिकॉज इट्स प्रॉक्सिमिटी टू अरुणाचल प्रदेश. द रेलवे रूट विल एनेबल चाइना टू क्विकली मोबिलाइज पर्सनल इन ऑफ द PLA एंड अदर डिफेंस रिसोर्सेज इन द इवेंट ऑफ बॉर्डर एस्केलेशन विद इंडिया. ऑफकोर्स अगर वहाँ पर ये अपनी कम्युनिकेशन और अपना जो भी है कम्यूटिंग पावर बढ़ा रहे हैं, अपने ट्रेन्स बना रहे हैं, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं उनका जो रीज़न है वो यही होगा, ताकि अगर कुछ भी कोई भी टेंशन कल को बढ़ जाती है तो वो जल्दी से अपने मिलिट्री पर्सनल या फिर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो जल्दी से हमारे कंट्री के बॉर्डर के पास अपना एक्यूमुलेट कर सकें. सो वी आर क्लोजली फॉलोइंग दैट, वी आर क्लोजली सीइंग कि व्हाट आर दे डूइंग, एंड वी विल डेफिनेटली टेक स्टेप्स टू काउंटर इट, राइट. Up next we have, and the last topic of the day is new species of human. So recently Chinese researchers ने ही ये एक स्कल इनको मिला है. एक्चुअली वो काफ़ी पहले का है, बट हमने अभी इस पर ज़्यादा ध्यान दिया है और ज़्यादा हमने रिसर्च करी है इसके बारे में, जिसको हमने ड्रैगन मैन भी बोला है, और बोला जा रहा है कि दिस इज़ द क्लोजेस्ट टू द होमो सैपियन. जो हम जो स्पीशीज़ हैं, माना जा रहा है कि ड्रैगन मैन इज़ द क्लोजेस्ट स्पीशीज़ टू अस. व्हाट आर द की फीचर्स? सबसे पहला ये कुछ 1,40,000 ईयर ओल्ड पुराना है, राइट. इट बिलोंग टू अ मैच्योर मेल हु हैड ह्यूज ब्रेन, मैसिव ब्रो रिजेस और डीप
ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नो नीड टू गो इनटू दिस मच डिटेल्स। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है इसका जो सिग्निफिकेंस है इस डिस्कवरी का। सो दिस डिस्कवरी ऑफ ड्रैगन मैन हैज़ द पोटेंशियल टू री राइट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। हमें पता है डार्विन की जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक थी, उसमें उन्होंने क्लियरली बोला था कि एक ह्यूमन एवोल्यूशन होता है, ह्यूमन इवोल्यूशन होता रहेगा, राइट। और ये होता कैसे है, ये रिप्रोडक्शन चेंजेस की वजह से होता है। रिप्रोडक्शन के टाइम पर कुछ चेंजेस आते हैं और ये एक दिन में नहीं हो जाता है, इट टेक्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू यू नो ऑफ दिस फॉर दिस इवोल्यूशन। सो उन्होंने ही ये बोला था कि ह्यूमन इवोल्यूशन होते रहेंगे, और आज तक निएंडरथल मैन्स जो थे उनको हमारा क्लोजेस्ट स्पीशीज बताया जाता था, बट अभी ये हो रहा है दैट इट इज़ सेड दैट होमोलॉन्गी कुड रिप्लेस दी होमोलॉन्गी, जो कि इसका ड्रैगन मैन का जो स्पीशीज़ है, दिस कुड रिप्लेस द निएंडरथल एज द क्लोजेस्ट रिलेटेड टू आवर स्पीशीज़, जो कि हम होमो सैपियंस जो है इसको रिप्लेस कर सकता है। तो बेसिकली अब तक बताया जा रहा था कि निएंडरथल जो है वो हमसे सबसे करीबी हैं, उनके बाद होमो सैपियंस आए हैं, मतलब हम आए हैं। बट अभी इस रिसर्च के हिसाब से ये बोला जा रहा है, ये रिसर्च ये प्रूव कर सकती है कि इट इज़ नॉट निएंडरथल के बाद होमोलॉन्गी आए हैं और उसके बाद होमो सैपियंस आए हैं, विच इज़ अस द मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। राइट, so that was all about this week. I hope it was informative. Thank you so much.